Good morning, everyone. Am I audible properly? Yes, ma'am. હા મેડમ, Yes, ધીમો ma'am. અવાજ આવે છે, થોડો વધારો ધીમો આવે. આવે છે. Wait. Every time I have to change my settings here. Now am I audible properly? નાવ પ્રોપરલી audible, મેડમ. Yes, Anand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે મેમ, ડન. So let's wait for some time. Only 11 students are here. મેડમ, હવે આપણી કોલેજ ક્યારે ખુલે? હા, ફર્સ્ટ સેમ ને બધાને જ ખુલી ગઈ. હા, સાચી વાત છે. મે બી આના પછીના 15 દિવસમાં ડિસિઝન કંઈક લેવામાં આવે મે બી. તમે કઈક કયો સર ને કે ખુલે એમ કઈક અમે જાણ શું તો કહું છું, કરાવો. મારું ચાલી રહ્યું છે. આ ડિસિઝન અમારું ના હોય, આ ડિસિઝન મેનેજમેન્ટનું હોય. આજથી ફર્સ્ટ સેમ ચાલુ થાય છે. હા મેડમ, એ તો વાય વાતો તો કરી. હા. મેડમ ફર્સ્ટ સેમ થઈ ગયું? હા, ચાલુ થઈ ગયું છે. તો આપણે શું ઓફલાઈન વાંધો આપણે હતો? બીજા અ, ખબર નહીં કઈ રીતે ડિસિઝન લીધું છે. જે મે બી એવું બની શકે કે ફર્સ્ટ સેમમાં કે હજુ એ લોકો માટે નવું નવું છે, તો એ લોકોને ગમે કરીને સેટ થવાનું છે, તો મે બી એ લોકોનું ઓફલાઈન ચાલુ કરી દીધું હોય એ રીતે. એટલે મેડમ આપણે તો બાલ મંદિર માં આવી ગયા ને, કારણ કે 9 ધોરણ સુધી થઈ ગયું. મે બી આના પછીનું જે ડિસિઝન હોય એ તમારા માટે હોઈ શકે. તો બેન બાકી અમે જ રહ્યા, અમારા માટે જ હોય ને. હા, એટલે એ જ મારું કહેવાનો મિનિંગ એ જ છે. કેવલ એલકેજી વાળા બાકી હજી.
Okay, so still only 23 students are there, but it's been 5 minutes, so let's start our lecture. Is my screen visible properly? Madam. Okay. So now next topic, write down everyone, determinant. Last time हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है वो हमने देखी थी. नाउ डिटर्मिनेंट, जो हमारा हेडिंग है, ये टॉपिक मींस कि ये यूनिट का हेडिंग है, क्या है? डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. तो अभी हमने मैट्रिसेस देख लिए, अब बारी है डिटर्मिनेंट की. तो राइट डाउन एवरीवन, मेन हेडिंग देना है डिटर्मिनेंट. સ્ક્રીન નથી દેખાતી મેડમ. મારા બે અકાઉન્ટ બતાવતા હશે, મારા બે નામ બતાવતા હશે, માં સેકન્ડ નામ જે હશે એની સાઈડ ઉપર પ્રેઝન્ટિંગ અ સ્ક્રીન એવું બતાવતું હશે, એ વાળું ઓપન કરો. બધાને દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? ના મેડમ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. કરો, જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમાં મારું નામ દેખાશે, બે નામ દેખાશે, એમાં સાઈડ પર એકાદામાં લખેલું હશે પ્રેઝન્ટિંગ અ સ્ક્રીન. એમાં જ છી મેમ, તોય નથી આવતું. Anuj, maybe network problem છે, you can give your attendance here. જેમને મારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી, અટેન્ડન્સ આપો. You can go. લેક્ચર નો ભરો તો યાદ કર્યું. हाँ, નાટક કરે હે, હે દિખે હે તો કે મેમ સ્ક્રીન નથી દેખાતી. તો મેં હશે, leave it. મેડમ એ કીધું અટેન્ડન્સ આપી દો. વિડિયો લેક્ચર Let's છે તમે ઓલામાં discuss નાખી that દે. matter here. Now, write down everyone, determinant. We'll write the definition first. So, definition. Write down everyone, definition of a determinant. Definition of a determinant. तो डिटर्मिनेंट क्या है? हमने ये देखा एक एग्जांपल, मींस की मैट्रिसेस किस टाइप के होते हैं. तो लाइक दिस 1 2 3 4 या एनी एंट्रीज विल बी देयर इन बिग ब्रैकेट. ओके, अब कोई भी ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये कितने बाय कितने का है? तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कोई एक वैल्यू अलॉट कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ कोई एक वैल्यू एसोसिएटेड होगी. अब वो वैल्यू क्या है? तो जितने का मैट्रिक्स होगा उतने उससे मींस कि ऐसे उसका फाइंड करने का तरीका डिफरेंट होगा. तो वो हम देखते हैं कि हम इतना ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कोई एक नंबर अलॉट कर सकते हैं, कोई एक नंबर. ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये कोई मैट्रिक्स क्वांटिटी है, बट इसको हम कोई एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं. ये नंबर जो होगा, जो इसके रिलेटेड होगा, वो हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ नंबर. ओके, तो हम डेफिनेशन में यहाँ पे लिखेंगे कि to every square matrix, write down everyone, A equals to aij n cross n ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए. मैम यस मैम लास्ट में તમે ઓલી બે રિમાર્ક્સ જ લખાવી હતી ને ખાલી? બે રિમાર્ક્સ क्या थी? मैं एग्जांपल्स લખાવેલા હતા. ओके, राइट. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. To every square matrix A equals to aij n cross n, we can associate a number. कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स क्या है वो आपको नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको स्किप करते हैं. कोई भी नंबर हम रखते हैं इतना. We can associate a number called a determinant
a determinant of that square matrix. ओके कोई नंबर है वो डिटर्मिनेंट और किसका, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर नहीं। रेक्टेंगुलर के लिए हम कोई भी डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये दोनों को हाईलाइट करना। of that square matrix A, of that square matrix A. और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंड it is denoted by this डिटर्मिनेंट ए, या तो हम DETA ऐसा हम लिख देंगे इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कि ऐसा मॉड्यूलस नहीं है ये ध्यान में रखना, या तो उसको हम ये भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके लिख लिया सबने। नाउ विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मीन्स की ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा, तो लेट्स राइट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मीन्स की यहाँ पे सी 1 क्रॉस 1, तो हम उसको ऑर्डर 1 इतना भी बोल सकते हैं। ओके ऑर्डर 1 मीन्स की एक कैसा होगा, लाइक दिस 1 क्रॉस 1 का, राइट। तो इसकी डेफिनेशन मीन्स की 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे कि लेट A इक्वल्स टू Aij 1 क्रॉस 1, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम वर्ड में नहीं लिखेंगे, हमारे पास ये नोटेशन है ही, तो हम लिखेंगे लाइक दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये AI से निकाल देते हैं और इसको सिर्फ A लिखते हैं, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसकी वैल्यू वही होगी A ही। मैडम નથી સમજાતું, ફરતી એકવાર કયો ના। જસ્ટ એવું રાખો કે આ 1 સપોઝ A ઇક્વલ્સ ટુ આવું આપેલું હોય 1, તો डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी ओनली 1। जो मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स था वो अब हो गया नंबर। ओके अगर 1 क्रॉस 1 आपको कोई मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो वो जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर होगा ना, वही उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। એક મિનિટ ઉપર કરો તો। yes. Okay now next let's write determinant of a matrix of order 2। so determinant
of a matrix of order 2 of order 2. So we'll write 2 cross 2 matrix. So let A equals to A11, A12, A21, A22. लाइक ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, कोई भी. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, अब ये मैट्रिक्स का जो ये ब्रैकेट है ना वो हट के वो 2 लाइंस हो जाएगी. इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे करेंगे A11 into A22. ओके, तो A11 into A22, देन माइनस करके ये A12 into A21. क्या होगा A12 into A21. तो ये सी, अब ये नंबर बन गया, ये कोई क्वांटिटी होगी, ठीक है. इसमें सब नंबर्स अप्लाई करो तो आपको कोई आंसर क्या मिलेगा, कोई नंबर. एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. लेट्स राइट द एग्जाम्पल. फाइंड डिटर्मिनेंट, या तो सिंपली हम ये लिख देते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ए फॉर द गिवन ए. Okay, first one. ओके, ऐसा दिया है A इक्वल्स टू 2, 3, -1, -5. तो सॉल्यूशन -13. यस, नो. डिटर्मिनेंट ए मीन्स कि ऐसा 2, 3, -1, -5, ये बीच वाला, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है. ये ऐसा नहीं कि लिखना जरूरी है ही, बट आपको कैलकुलेशन दिखानी होगी, क्या होगा, तो दिस नंबर. ओके, पहले क्या करना होगा, 2 into -5. -15 मैडम. 2 into -5, तो 2 into -5, -10. ही होना चाहिए. इंटू करके क्या करना है, 3 into -1, तो 3 into -1 क्या मिला, तो -10 -3, -10 plus -7. yes, -7 will be the answer. મેડમ થોડુંક ઉપર છે, મારે શું કે નેટવર્ક નહોતું તો બહાર લીવ થવાઈ ગયું હતું. ડન મેડમ. ओके, ठीक है. तो प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना. હજી એક જો ને. हाँ,
Next, the second one, A equals to 4, 8, no, 16 minus 1 minus 4. No, only 4. Zero. Are you sure? हाँ ना मैडम ना 4 into 4, पहले हम ये 4 into 4 लेंगे, right? Then 16 into minus 1. हाँ मैडम जीरो જ આવશે 32 આવશે મેમ. माइनस करके -32 આવશે. माइनस करके 16 into minus 1. બધા 32 મેમ. अगर पहला कैलकुलेशन तो करो. ओके 4 into 4 that is 16 माइनस करके minus 16 तो क्या आया 16 plus 16 that is 32 32. Third one, A equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. Find out determinant A. મેમ આન્સર 1 આવે છે. Okay, good. So cos alpha into cos alpha. Cos alpha into cos alpha minus करके sin alpha into minus sin alpha, right? तो cos alpha into cos alpha that is 2 times multiplication में है तो cos square माइनस करके माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा. ओके cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये थीटा जो है दोनों कैसे है सेम है तो क्या आइडेंटिटी लगेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1. Fourth one, A equals to 180 minus 90 minus 2 1. मैम મેમ આમાં 0 આવશે. Yes, 0. जीरो Yes, good. 0 हाँ. Okay, 180 into 1 minus करके minus 90 into minus 2. तो ये 180 into 1 that is 180 minus 90 into minus 2 that is 180. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके सेम क्वांटिटी है नेगेटिव में तो आंसर 0. Fifth, -1 -2 0 0. 0 0 मैम जीरो हाँ, good. Okay, determinant A equals to -1 into 0
माइनस करके -2 इंटू 0, तो दोनों 0 - 0 दैट इज 0। तो अब समझ में आ गया कि 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा। और ये ध्यान करो आप सब, ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो सब क्या है, क्या है ये? नंबर। यस, गुड, नंबर है ये, ठीक है, ये सब नंबर्स है। मैम हाँ अगर मैंने ऑर्डर में 3 इंटू 3 हो जाए तो फिर हाँ, ऐसा तो उसका हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। हमने पहले 1 क्रॉस 1 का देखा, ओके, हम 6 वाला भी ये लिखते हैं। चलो 6th क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन सपोज -10, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, अगर 1 क्रॉस 1 का अगर आपको मैट्रिक्स दिया है, ओके, अगेन देखते हैं हम यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का अगर सी मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो दैट नंबर -10। यस। तो सी यहाँ पे सिंबल चेंज हो जा रहा है, आप ऐसा मत सोचना कि ये डिटरमिनेंट, ये मॉड्यूलस है, यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? -10। This is not a modulus. This is the sign for determinant. Okay. सिंबॉलिकली अगर हम देखें, अगर 1 2 3 4 ऐसा दिया है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला है, तो हमने आगे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे दोनों लाइन में, अब ब्रैकेट लाइन में चेंज हो गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट, दोनों सही है, बट ये करना जरूरी है। तो ये लाइंस दिख रही है आपको दोनों, वो करना जरूरी है। ओके, दोनों सिंबल्स से आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ओके, अगर हम लिखते हैं a = 0, ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? 0 मैट्रिक्स कर सकते हैं या नल मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 0। Now let's write determinant of order 3. Okay, so we'll write here determinant of a matrix of order 3. Of order 3. इसके लिए हम 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। सो लेट a = अब a11 a12 ऐसा नहीं लिखते और हम लिखते हैं ABCD, ABC DEF GHI। क्योंकि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, A11 मीन्स की सफिक्स में भी दो नंबर्स लिखने हैं। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब ये लिखेगा नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में लिखना है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A हम क्या करेंगे, तो पहले हम ना ये जो फर्स्ट रो है ना वो कंसिडर करेंगे, A B एंड C। तो हम लिखेंगे ऐसा A देन B एंड देन C। ये फर्स्ट जो है A वो पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट साइन देनी है। नाउ यहाँ पे जो स्पेस छोड़ी है वहां पे क्या करना है,
तो हमने कंसीडर किया ये ए, ओके, ए को कंसीडर किया तो हम क्या करेंगे, जो ये ए जिस रो में और कॉलम में है, कौन सी रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो वो कैंसिल आउट कर दो, और फर्स्ट कॉलम में है तो वो भी कैंसिल आउट कर दो। अब ये जो स्क्वायर बना ना, उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या करना है, तो क्या करना है, ई एफ एच, ओके, फिर लेट मी रिमूव दिस, फिर क्या करना है, बी के साथ क्या करना है, तो बी जिसमें है रो मीन्स की फर्स्ट रो, और जिस कॉलम में है, कौन सी, सेकेंड कॉलम, तो वो निकाल दो। तो अब ये जो बचा वो स्क्वायर दिख रहा है, उसका डिटर्मिनेंट, ओके, तो क्या, डी एफ जी आई, सिमिलरली फॉर सी, इस रो में है, कौन सी, फर्स्ट रो में, और कॉलम वो निकाल दो, बाकी का जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो डी ई जी एच। आया समझ में? ये फर्स्ट रो को कंसीडर करनी है, ए बी सी, माइनस क्या थे मैम बी में, साइन देनी है ऐसी। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पॉजिटिव, फिर दूसरा है वो नेगेटिव, और तीसरा है वो पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन देनी है, प्लस से स्टार्ट करना है। फिर ए के साथ क्या लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो रो कॉलम निकाल दो, ए जिस पोजीशन में है वो रो कॉलम को निकाल दो, जो बचते हैं 4 एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट उनका। देन बी के साथ क्या, तो बी की रो कॉलम निकाल दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, सिमिलरली फॉर सी ऑल्सो। तो ये क्या लिखा है वो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रोसीजर। ओके मैडम, क्लियर। ओके, मैडम एग्जांपल कराओ એટલે હમણાં ક્લિયર આવશે જાય। लेट्स राइट द एग्जांपल। Find the determinant A for the given A. Okay, first one is A equals to say -1 3 2, यहाँ पे -1 नहीं 1 ही रखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। देन -3 0 5 2 -1 and 4। let's say -2। so determinant of this matrix equals to, आप ये लिख सकते हो कि ये ब्रैकेट हटा के उसका डिटरमिनेंट मीन्स की 2 लाइंस, वर्टिकल लाइंस। क्या करना है, फर्स्ट रो को कंसीडर करना है 1 3 एंड 2, तो हम लिख देंगे 1 3 एंड 2 स्पेस छोड़ के। नाउ फर्स्ट विल बी पॉजिटिव, साइन देनी है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, कौन सा, नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव। देन हम कंसीडर करेंगे 1 को, 1 के साथ हमें लिखना है ना, इसलिए 1 को कंसीडर करो, वो रो और कॉलम निकाल दो, जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है, तो 0 5 -1 -4। देन अब 3 की बारी, तो 3 जहां पे है वो रो और कॉलम निकाल दो, जो बचेगा उनका डिटर्मिनेंट, तो क्या है -3 5 -2 -4। नाउ 2 के साथ, तो 2 की रो और कॉलम निकाल दो, बाकी जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, तो -3 0 2 -1।
મેમ વચ્ચેનામાં -2 નથી 2 જ છે. टू ओके ओके यस मैम वहाँ पे 2. माय मिस्टेक ओके नाउ कैलकुलेट दिस क्वांटिटीज ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो आपको पता करना है तो पहले करना है 0 इंटू -4 देन 5 इंटू -1 तो हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट करेंगे क्योंकि अभी भी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो 0 इंटू -4 माइनस करके 5 इंटू -1 देन -3 इंटू ये दोनों -3 इंटू -4 देन 5 इंटू 2 तो -3 इंटू -4 माइनस करके 5 इंटू 2 एंड प्लस 2 इंटू -3 इंटू -1 एंड देन 0 इंटू 2 ओके तो -3 इंटू -1 माइनस करके 0 इंटू 2 कैलकुलेशन करो तो 1 इंटू क्या मिला -4 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस -5 दैट इज +5 -3 इंटू -4 दैट इज 12 minus 5 into 2 that is 10 plus 2 into -1 into -3 that is 3 minus 0 so 5 minus 3 into 2 plus 2 into 3 so 5 minus 6 plus 6 क्या मिला आंसर 5 आया समझ में सबको यस मैडम ओके यस मैडम ठीक है ये सिर्फ प्रोसीजर क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है दैट्स इट एक्सक्यूज मी हाँ मैम जैसे ये 1 -3 और 2 फर्स्ट रो लिए है ना उसमें हाँ। ये मैम सेकंड रो या थर्ड रो ले सकते हैं उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना तब हम देखेंगे कि अगर सेकंड रो लेनी है तो फिर यहाँ पे जो साइन हमने ली ना ये प्लस माइनस प्लस वो सब चेंज हो जाएगा और वो कैसे चेंज करना है कि कौन से हिसाब से वो वाला हम जब वो फैक्टर वाला टॉपिक आएगा ना तब हम देखेंगे ओके अभी आप इतना ही रखो कि फर्स्ट रो ही हमें लेनी है मैम ऊपर करो तो 1 मिनट मैडम आवाज तो मैम पहला તમે ABC લખ્યું હતું A minus B plus C એ છે ને રિલેટેડ હતું એકચ્યુઅલી કો ફેક્ટર નો કોન્સેપ્ટ છે એ જ્યારે આપણે જોશું ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કેમ આપણે A then minus B only then C positive એવું કેમ લીધું એનો કોન્સેપ્ટ આપણે આગળ જોશું મેડમ 4 હોય તો આવી રીતના જ થાય કે અલગ યસ કૃપાલ મેડમ 4 હોય તો આવી રીતના જ થાય 4 હોય તો પણ હા આવી રીતે થાય સેમ આ રીતે જ મેમ આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ કોલમ છે હા આપણે અહીંયા જે ફર્સ્ટ કોલમ માં A minus B plus C જે મેળ ખાઈ ગયો ઈ દર વખતે એવું થોડું થાય એમ અરે ખાલી ફર્સ્ટ રો ઓન્લી કોલમ અત્યારે જોવાની જ નથી
ઓકે ઓકે રો લીધી છે ને એમાં માઇનસ પ્લસ રો કેરેટ કેરેટ મેં કીધું મેમ 1 ને -3 ને +2 એ રીતે લીધા છે એટલે એટલે જ આ હાઇલાઇટ કરી નાખો. ચાલો ખોટું પછી અહીંયા કઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઓકે લેટ્સ મેમ નીચે કરજો. ઓકે आने हाईलाइट करो फर्स्ट रो ने. फर्स्ट रो को हाईलाइट कर दो तो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको कोई भी. Done now. So let's write another example. Second one. Let's say A is 2 -3 1 2 0 -1 and 1 4 5. Calculate this determinant A. कर पाओगे खुद से या कराऊं मैं? થઈ જાય મેડમ. ओके हो बस जाए ये से ध्यान मैम। में रखना माइनस करके -3 लिखना, ठीक है, सो दैट आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो. डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू कैसे लिखना है तो 2 then -3 and 1. First one will be positive, second one will be negative and then third one positive. ऐसे लिखना so that आपकी गलती ना हो कैलकुलेशन में कोई भी. ओके 2 की रो कॉलम निकाल दो. सो मिलता है 0 -1 4 5. મેમ यस આપણે પહેલા સમમાં તો કોલમ રો લીધી હતી તો આમાં શું કામ કોલમ? તો આપણે રો લીધી છે ને 2 -3 1. તો આના પહેલાના સમમાં તો કોલમ લીધી હતી ને. ક્યાંથી કોલમ લીધી હોય? 1 3 2 અમે હાઇલાઇટ પણ કરેલું છે. ઓલ ટાઈમ ફર્સ્ટ રો જ લેવાની છે. પણ -3 છે મેમ તો -3 તો નો કોલમમાં છે. નો અગેન કન્ફ્યુઝન માં કેમ આવો છો? 1 3 2 લીધું, પેલું પોઝિટિવ બીજું નેગેટિવ ત્રીજું પોઝિટિવ. કોલમ સાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી, એ બાય ચાન્સ સેમ જેવા આવે છે નંબર્સ, એટલે જ મેં અહીંયા હાઇલાઇટ કરાવ્યું સી. ઓકે આ તો બાય ચાન્સ સેમ જેવા થઈ જાય છે 1 -3 2, એને કન્સિડર જ નથી કરવાનું. સેકન્ડ નેગેટિવ લીધું છે, પેલું પોઝિટિવ બીજું નેગેટિવ ત્રીજું પોઝિટિવ, એટલે બાય ચાન્સ 1 -3 2 થઈ ગયું છે, એને કન્સિડર મેડમ 68 આન્સર આવે. યસ 68 આન્સર આવે. नो नो नो. ओके यहाँ पे -3 के साथ क्या होगा? मैम 49 आंसर आवे. हाँ कितना? 49. 49 will be the answer and 1 के साथ 2 0 1 4. ओके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं.
ये हाईलाइट करके रखना सो दैट अगेन कंफ्यूजन ना हो कि फर्स्ट रो ही कंसीडर करनी है हमें। $49 विल बी द आंसर। अगर नहीं आया तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 0 इंटू 5 माइनस करके -1 इंटू 4 देन माइनस इंटू माइनस दैट इज +3 2 into 5 minus -1 into 1 okay then +1 करके 2 into 4 2 into 4 minus 0 into 1 so 2 into 0 minus -4 that is +4 +3 into 10 plus 1 and +1 into 8 minus 0 2 into 4 that is 8 plus 10 plus 1 that is 11 into 3 33 अब ये बीच में स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हो +8 into 1 that is 8 ये 8 plus 8 16 plus 33 that is 49 મેમ રેડી આવી ગયો આન્સર રેડી રેડી डन ओके આવી ગયો મેમ। हाँ So next, third question. मैम एक सेकंड ऊपर का रखना ना मैम। हाँ મારે સ્ક્રીન હોઈ ગઈ હતી મેડમ અત્યારે આવી ઓલો સમ રાખો ને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ચેક કરાવો ડન મેડમ ડન। ओके नेक्स्ट મેડમ હજી એક हाँ हाँ हजी बे करसु 1 3 2 -3 -1 -3 2 3 1 ओके અહીંયા પણ બાય ચાન્સ આવી જાય છે सी अगेन कंफ्यूज मत होना सिर्फ ये 1 3 2 ही लेना है ये बीच वाला माइनस आ जाएगा तो ऐसा कंसीडर ऐसा मत सोच लेना कि हमने फर्स्ट कॉलम ली है ओके ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हम फर्स्ट रो ही कंसिडर करेंगे तो 1 3 and 2 first one will be positive so +1 +1 then second negative and third positive now 1 की रो कॉलम निकाल दो तो -1 -3 3 1 देन सेकेंड 3 जो दिख रहा है ये 3 वो वाली रो कॉलम निकाल दो ओके तो बचता है -3 2 1 एंड देन 2 के साथ रो कॉलम निकाल दो तो -3 -1 2 3 खुद से ट्राई करते जाओ ठीक है मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रही हूँ आप टैली कर सकते हो
પાંચ આવે नो -15 મેડમ यस गुड -15 मैम -15 हाँ -15 तो 8 -9 -14 ये -1 and -14 that is -15 Again, let's take another example. Fourth one. A equals to -5, 0, -1, 1, 2, -1, and -3, 4, 1. जैसे संतोष ने बताया कि फर्स्ट रो ही ले सकते हैं, तो हाँ मैंने बताया कि सेकेंड रो थर्ड रो भी ले सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट उसके लिए फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो रूल था वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर बाद में देखेंगे कि वो रूल क्या होगा। अभी उसकी मीन्स की अभी टाइम है उसके लिए, आपको ये पहले कैलकुलेशन में कंफर्टेबल रहना होगा, उसके बाद हम वो वाला टॉपिक देखेंगे कि आप कोई भी रो या कॉलम ले सकते हो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। प्रोसीजर सेम ही रहेगी, जो हम रो कॉलम को डिस्कार्ड कर देते हैं वो सब चीज सेम रहेगा, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला ही रूल चेंज हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव लेना है वो चेंज हो जाएगा। दैट મેમ આમાં બીજી વચ્ચે 0 છે તો ઈ તો નો કેલ્ક્યુલેટ કરી તે ચાલે ને 0 જ થવાનું હોય। चाले। सेकेंड क्वांटिटी 0 है तो वो वाली कैलकुलेशन आप ना लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, आप पहले कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेशन मैं नहीं लिखूंगी इसकी। -40 यस वेरी गुड, -40। आंसर विल बी -40। ડન મેમ। ओके, आई थिंक ये मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। બસ મેડમ આવું જ ચાલવા દેજો।
ઓફલાઈન થાય ત્યાં લગી. હા, ને આના પછી જ્યોમેટ્રી આવશે. એ પણ મને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે, જો કે મને મેથ્સના બધા જ ટોપિક ઇન્ટરેસ્ટિંગ જ લાગે, કેમ કે એ મારો મેથ્સ મેઇન સબ્જેક્ટ છે. મેડમ આઈ થિંક આવતું હોય ને જ્યોમેટ્રી બધાને પસંદ આવશે. और एक बात, अगर आपको डिप्लोमा से आगे आपको अगर स्टडी करनी है ना, तो ये सारे मैथ्स की जो भी बुक्स है वो सब आप बचा के रखना, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको फिर रिफर करने होंगे. ऑब्वियसली 1-2 साल का आपका गैप हो जाएगा, तो आपको फिर ये सब टॉपिक्स आपके दिमाग में से वाइनिश आउट हो जाएंगे, राइट? तो बाद में आप कर सकते हो. वैसे सिर्फ आई थिंक इलेक्ट्रिकल वालों को ही ये सब्जेक्ट पढ़ने को होता है, बाकी आई डोंट थिंक कि वैसे जीटीयू हर बार रूल्स चेंज करता रहता है, या तो फिर कोई भी जैसे जीटीयू चेंज करता रहता है, बाकी की यूनिवर्सिटीज भी चेंज करते रहते हैं. तो बेटर कि आप ये सब बुक्स है वो सब आप बचा के रखो. મેડમ આ છેલ્લા વર્ષ જ છે ને મેથ્સ નો, પછી આગળ નહીં હોય ને? ના, હવે નહીં હોય તમારે, થેન્ક ગોડ નહીં. આ વખતે તો મેડમ બધા નીકળી જવા દો. હા, ओके. और हम लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन. उसकी भी सिर्फ मैं उसका आंसर ही लिखूंगी, कैलकुलेशन नहीं लिखूंगी. ओके. यहाँ से हम निकाल देते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको. મેમ થોડા નહીં આ તમે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ કરી નાખ્યું. ओके, बट कैलकुलेशन करो, ख्याल आवશે. जीरो आंसर आवे मैम. यस, ठीक है. जैसा डेंजर जितना दिखता है, ये सम ऐसा है नहीं. जीरो. यस, 0. 0. ठीक है, अच्छा था ये एग्जाम्पल. હા મેમ બરોબર. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई एक रो या कॉलम अगर 0 है पूरी की पूरी, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा. ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने आगे भी देखा था. सी, यहाँ पे हमने देखा था ये वाला 5th. यहाँ पे भी एक रो पूरी की पूरी 0 है, तो उसका आंसर भी क्या मिला? 0. ओके. तो पूरी की पूरी अगर रो या पूरी की पूरी कॉलम अगर 0 है, तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर ऑलवेज 0 ही होगा. जैसे कॉलम अगर हम 0 ले, चलो यहाँ पे देखते हैं और एक एग्जांपल. ओके, लेट्स टेक a equals to 5 minus 9 0 minus 5 minus 9 0 3 10 0 minus 6 11 0. जीरो. तो
इसका हाँ, बट कैलकुलेशन करके 0। 0 कैलकुलेशन करके इसका 0 आंसर कैसे मिलता है वो चेक करो। डायरेक्टली लिख देना नहीं है, ये सिर्फ मैंने ट्रिक समझाई आपको कि ऐसा ही आंसर इसका होगा। नो 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 नो, हाँ हाँ, ओके। आंसर विल बी 0, ये फाइनल है, बट कैसे 0 तो वो कैलकुलेट करना है आपको। Okay, it's been 10:01. So give your attendance in the chat box, everyone, and you can leave the class. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दीपेश, अगेन आपने गलत अटेंडेंस दी है, आपका डेटा फिल्टर नहीं हो पाएगा दीपेश। दे दी है मैं अटेंडेंस। हाँ दे दी है मैं अटेंडेंस। हाँ, પણ પહેલા દીપેશ, પછી 6001 नहीं, पहला 6001 देन दीपेश। ये मैनर आपको ध्यान में रखनी है एवरीवन। अगर ऐसे नहीं लिखा है फिर से लिख दो, यस गुड। आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखो तो भी चल जाएगा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। મેમ આની પીડીએફ મૂકી દેશો ને? હા, આજે હું આપી દઈશ તમને, બટ લેટ થશે કેમ કે મારા બેક ટુ બેક આજે લેક્ચર્સ છે। मैम ऑफलाइन क्યારે बाकी है वो मैं आपको दे दूंगी। यस सुजल, ऑफलाइन क्યારે થવાનું છે? ટ્રાન્સપોર્ટેશન નો તો મેસેજ આવી ગયો। હા, બટ એ ખાલી આપણા ફર્સ્ટ યર માટેનો છે। થશે એ પણ તમારું બહુ જલ્દી, આઈ હોપ કે બહુ જલ્દીથી તમારું પણ સ્ટાર્ટ થઈ જાય। Okay, so you can leave now.